سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام، عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہے۔ خان صاحب 5 دن کا ٹائم جو لیا، اس پر کئی چیزیں جو ہے اس وقت خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے، اور کہتے ہیں کہ ان 5 دنوں میں امریکہ کوئی زمینی فوج بھی اتارے گا اور اسلحے کی کوئی کمی ہوئی ہے اسے اکٹھا کرے گا، لیکن یہ جنگ بند نہیں ہوگی۔ کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ صحیح ہے، آپ کی رائے ہے یا آپ انٹرنیشنل رائے بتا رہے ہیں؟ انٹرنیشنل لوگ جو میڈیا میں بات چیت ہو رہی ہے کہ اتنے آرام کے ساتھ یہ جنگ بند ہونے والی نہیں ہے۔ نہیں، آرام سے تو بند نہیں ہوئی۔ 15 جو بھی 5 دن کی ملی ہے مہلت، اس 5 دن کے اندر بھی امریکہ اپنا کافی نقصان کروانے کے بعد اس نتیجے میں پہنچا ہے کہ بھائی کہیں کہیں کسی طرح کے ذریعے سے بات چیت کا عمل شروع کیا جائے۔ جن لوگوں کی کوششوں سے یہ بات اب اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، یہ کوششیں پہلے دن سے ہو رہی ہیں، اور پہلے دن سے امریکہ ان کی بات نہیں سن رہا تھا۔ اس وقت تو تکبر میں تھا کہ جی میں آپ کو 1 ہفتے کے اندر اندر ایران کا ملیہ بیٹ کر دوں گا، ہر چیز تباہ کر کے رکھ دوں گا۔ نیوی میں نے تباہ کر دی ہے، ایئر فورس پہلے ان کے پاس برائے نام سے جس کو ہم نے ختم کر دیا ہے، رڈار سسٹم ہم نے ان کو تباہ کر دی ہے، جو مین قیادت ہے ان کی وہ ہم نے ختم کر دی ہے۔ تو ہم اب وہاں پر جو نئی حکومت لانا چاہتے ہیں اس کے حق میں لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے اور نئی حکومت بن جائے گی۔ اب اس کو 3 ہفتے لگا دیے اس کو مکمل ناکامی دیکھنے کے بعد کہ بھئی جس مقصد کے لیے اس نے سارے اقدام اٹھائے تھے اس وجہ سے کو اتنی کامیابی نہیں ملی۔ تباہی بربادی تو ظاہر ہے ہر جنگ کے اندر پھرتی ہے، دونوں طرف ہوئی ہے، تو جو اصل مقصد تھا اس طرح بات نہیں بڑھی۔ تو اب اس نے انہی لوگوں کو جو پہلے دن سے کوششیں کر رہے تھے اس طرف توجہ دینی شروع کی ہے، اور 15 نکاتی ایجنڈا جو ہے وہ انہوں نے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب یہ 15 نکاتی ایجنڈے میں سے اکثر چیزیں وہی ہیں جن کو اوپر عمان کے اندر جو ہے بات چیت ہو رہی تھی، اور وہاں کے قبرص کے یہ جو ہے ان کے وزیر خارجہ عمان کے جو ہے وہ کنفرم کر چکے ہیں کہ یہ باتیں ایران نے مان لی تھی، اور زیادہ تر جو ہے وہ 15 اوقات کے اندر جوہری ہتھیار جو ہے انہی کے اوپر زیادہ تر یورینیم کے سرزی کے اوپر جو ہے وہ شرطیں رکھی گئی ہیں، اور وہ ایران پہلے ہی ماننے کے لیے تیار ہے، اس میں اس کو کوئی وہ نہیں ہے۔ تو لیکن اس کے مقابلے میں وہ کہتے ہیں کہ ایران کے اوپر تمام پابندیاں ختم کر دی جائیں۔ بات یہ ہے کہ یہ ان سالس تو مل گئے آپ کو جو بیچ میں پڑھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایران اتنی اپنا ملک برباد کروانے کے بعد، تباہی کروانے کے بعد لازمی جو ہے وہ ضمانت چاہے گا کہ کوئی ضامن بنے، اور دم کا ضامن آج کے حالات میں مجھے بتائیں کون بننے کے لیے تیار ہے؟ کون سا ملک جو ہے وہ ٹرمپ کے صدر امریکہ ہوتے ہوئے ضامن بننے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ اس لیے یہ بات اب 5 دن کے اندر جو گفت و شنید ہوگی اس کے بعد ہی پتہ لگے گا۔ ابھی تو اس ملک کا فیصلہ نہیں ہوا کہ بھئی یہ گفت و شنید کہاں شروع ہو۔ آفریں پاکستان نے بھی آپریشن کیا کہ یہ ہمارے پاس کر لو، لیکن دونوں پارٹیوں نے وہ جگہ دیکھنی ہے جو بالکل نیوٹرل ہو۔ پاکستان اور ایران کا ایک برادرانہ تعلق یقین موجود ہے، لیکن پاکستان ہمیشہ امریکن پریشر میں آ کے ایران کا بائیکاٹ کرتا رہا ہے چیزوں کا۔ پاکستان اور ایک قریبی ملک ہونے کے باوجود اسمگلنگ تو ضرور ہے، لیکن جو ٹریڈ ہے وہ 1 بلین بھی کبھی نہیں ہے سالانہ۔ پھر اسی طرح جو ایران نے کہ پاکستان نے معاہدے کیے کہ بھی آپ ہم سے گیس لیں گے، وہ معاہدے پاکستان نے پورے نہیں کیے۔ پاکستان اس بائیکاٹ کا حصہ بنا ہوا ہے جو امریکہ نے دنیا کو کہا ہے کہ بھی آپ امریکہ کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتے۔ پھر ایران نے یہ بھی آفر دی پاکستان کو کہ بھی آپ کی جو گیس پائپ لائن ہے وہ ہم ڈال دیتے ہیں، ہم آپ کو قرض دے دیتے ہیں، اور جب آپ بعد میں جب گیس جانی شروع ہو جائے گی تو وہ معاہدہ بھی جو ہے اس کو بھی 3 دفعہ اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے، اور پاکستان وہ گیس لائن ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ تو ایسی صورت میں ایک بعض جھکاؤ رکھنے والا ملک جو ہے اس کو میں نہیں سمجھتا کہ ثالثی کے طور پہ یا قبول کر لے گا ایران۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ بھئی کوئی ایسا بڑا ملک جس کی دونوں طرف اعتماد کا اظہار ہو، اور وہ سوائے کی مجھے نظر آتا ہے کہ بھئی G7 ممالک جو ہیں اگر وہ مشترکہ مل کے
भारत को दुनिया की इस वक्त मीशत को भी ये G7 चला रहे हैं, दुनिया के फाइनेंशियल जितने हब है वो भी इन्हीं के कंट्रोल में है। तो अगर ये साथ मिल के दामन बांध जाए तो फिर मुमकिन है कि ये बात जो है एक मायरा ऐसा तय पा जाए जिसके ईरान तस्लीम कर ले कि हाँ ट्रम्प ऐसे करेगा। लेकिन अब तक जितने भी बातें हुई है उसमें ट्रम्प ने इतने भी फैसले बदले हैं, इतने अपने बयान बदले हैं। ईरान जहां खड़ा था पहले दिन से उसी बयान के ऊपर खड़ा हुआ है, लेकिन ये ट्रम्प साहब तो रोज बयान बदल देते। तो इस सूरत में बहरहाल अब एक बुनियाद तो पड़ी है, अब अगले दिनों में देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट निकलता है। बहरहाल तो जो 15 नुकाती एजेंडा है वो ऐसा बुरा नहीं कि उसके ऊपर ईरान राजी ना हो। अच्छा खान साहब, खुद ही आपने इस सवाल का जवाब दे दिया कि ये 5 दिन में ट्रम्प शायद फिर कोई यू टर्न ले चले। ये फ्रांस के स्पीकर ने शायद कहा कि ट्रम्प के ऊपर इतमाद नहीं कर सकते, वहां से ही कल का एक बयानिया जारी हुआ है। वो तो ईरान नहीं, उसके अंदर से अमेरिका के अंदर से बॉस जो है आपके थिंक टैंक्स उन्होंने ये बात की है कि भाई इतने इन्होंने बयान बदले हैं ट्रम्प साहब ने कि इनके ऊपर जो है मतलब किसी ऐसे नतीजे पहुंच जाए उस पर अमल करने के लिए बाहर एक निजाम की जरूरत होगी, और वो जमानत कौन देगा। अच्छा खान साहब, ट्रम्प मान जाता है, फर्ज करे चलो इतमाद करना या नहीं करना ये एक अलग इशू है, इसराइल उसको कौन काबू करेगा जो यूएनओ की बात नहीं मानता, जो दुनिया को नहीं मानता, जो दुनिया के कवानीन को नहीं मानता। और ये भी हो सकता है कि इसराइल के जरिए हमले जारी रहे और ईरान के साथ जंग चलती रहे और अमेरिका जो है वो अपने आप को पीछे खींच ले ताकि अरब ममालिक का दबाव हो। इसके बारे में क्या ख्याल है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखें, जब ईरान पर हमला करने वाले दो मुल्क हैं, जो भी मुआहदा होगा वो तीनों ममालिक के दरमियान होगा। अच्छा खान साहब, अभी आपने कहा कि पाकिस्तान के मुतल्लिक काफी आपने खुलकर बयान किया अभी बड़ा अच्छे तरीके के साथ, लेकिन पाकिस्तान में तो इतना शोर पड़ा हुआ है कि आप जनाब इंटरनेशनल लोग हमारे मुल्क में आएंगे, इस्लामाबाद में टेबल सज गए हैं, खलबली मच गई है, अब हम अपने कर्जे माफ करवा लेंगे, अब खैरात ज्यादा आएगी, अब सदका ज्यादा है। क्या हमारी कौम है, थोड़ा सा ये भी बताइए। हम तो फंटाजी में जीते हैं ना, जीने वाली कौम है, इसलिए अभी बात शुरू नहीं हुई, काम शुरू नहीं हुआ और पहले हमने उसके नताइज निकालने हैं और उससे फायदे सोचने शुरू कर रही है। अभी तक तो फैसला नहीं हुआ कि कहां पर। पाकिस्तान ने एक ऑफर दिया है कि हम भी मेजबानी करने के लिए तैयार है। अब आया तीनों पार्टियां इसको कबूल करती है या नहीं करती, ये तो बात की बात है। इसलिए पाकिस्तान में जैसा शोर पड़ा हुआ है वो मुमकिन है मिस्र के अंदर भी ऐसा ही मुस्लिम वाले शोर कर रहे हो, टर्की वाले भी इसी तरह शोर कर रहे हो। ये तो अपने अपने मुल्क के अंदर एक शोर पड़ा हुआ है कि यहाँ इन तीनों ममालिक ने सालसी की पेशकश की हुई है। ये तीनों इस मामले को सुलझाने में, ट्रम्प साहब को प्रोत्साहित करने में भी एक हिस्सा ले रहे थे, तो इसलिए इन तीनों के नाम आ रहे हैं। बहरहाल जहां भी कोशिश इनकी यही होगी, जहां पे भी ये गुफ्त शहीद हो वो किसी मुसलमान मुल्क को जो है चुना जाए, इसलिए कि बहरहाल इस खलीज ममालिक जहां वो भी इस जंग का हिस्सा बने हैं और वो भी इन मायदे के अंदर लाजमी उनकी भी एग्रीमेंट जो है वो जरूरी होगा। इसलिए मुमकिन इम्कान यही है कि किसी न किसी मुसलमान मुल्क के अंदर जो है इस पर गुफ्त शनीद शुरू होगी, जैसा कि पहले ओमान में हो रही थी। हो सकता है दोबारा ओमान में शुरू हो जाए या कहीं और मुल्क में जाकर शुरू हो। हाँ सर, क्या देखते हैं अगर कोई इसका अच्छा नतीजा निकलता है तो ये शिप वगैरह चलने शुरू हो जाएंगी और ये प्राइसें वगैरह फिर नॉर्मल आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगी? देखिए, जो 15 नुकाती एजेंडा है उसके अंदर उस एरिया का खुलना शिपों के लिए वो उसका हिस्सा है। तो वो लाजिम बात है कि भाई अभी तो वो कहते हैं कि भाई 1 महीने के लिए जंग बंदी की जाए और इस मायदे के ऊपर जो शिकें हैं उनको अमल दरामद शुरू किया जाए। तो उसके बाद वो पता लगेगा कि हाँ 1 महीने के बाद हम किस हद तक आगे बढ़े हैं या दोबारा पीछे की तरफ लड़ाई झगड़े वाली कैफियत जा रही की तरफ जाते हैं। तो ये तो बहरहाल एक दफा मिल बैठने के बाद, स्टेज टॉक होने के बाद, किसी नतीजे में पहुंचने के बाद बातें जो शुरू होंगी। अभी तो महज एक पेपर के ऊपर ये 15 नुकाते एजेंडा लिखा गया है, जो कि लिखने वाला भी अमेरिका है और वो कह दे कि ईरान के हवाले किया गया होगा, ये इसराइल के हवाले किया गया होगा।
हाँ साहब, ईरान से कुछ वीडियोस कल मैंने देखी, लोग सड़कों पे आए हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, खून का बदला खून, इन्होंने हमारे ऊपर जो हमले किए जिससे सुप्रीम लीडर की भी जान चली गई और भी मासूम लोग मारे गए, तो जंग बंद ना की जाए, बकायदा इनका मुकाबला किया जाए। अवाम में इतना जोशो खरोश देखने में आया उन वीडियो में। क्या देखते हैं कि जो ईरान की अवाम है, इन हमलों के बाद आपस में जो इख्तलाफात थे वो भी भूल चुके हैं और इकट्ठे हो गए? देखें, इस जंग के अंदर तो बहरहाल ईरानी आपस में इकट्ठे हैं। अभी तक तो उनका एक ही नुक्ता नजर है कि भाई हमने किसी के कहने के ऊपर अपने मुल्क की हुकूमत नहीं बदल दी। जो भी फैसला करना है हमने अपने मुल्क के अंदर खुद रह के करना है, दूसरी किसी पावर की मुदाखलत के बगैर। तो अब इन मामलात के साथ कब तक ये रुका रहता है, कब तक ये 15 नुकाती एजेंडा है इस पर गुफ्तगू शुरू होती है, उस वक्त तक आवाम तो बहरहाल जज्बात में रहेंगे, लेकिन जज्बात से तो जंगें नहीं लड़ी जाती, जंग तो हुकूमतें लड़ रही है। अब हुकूमत में लाजमी बात है जो ऊपर की लीडरशिप पे खत्म हो जाने के बाद, शहीद हो जाने के बाद नई लीडरशिप बहरहाल सामने आ रही है। अब नई लीडरशिप किन लाइनों पर काम करती है, किस तरीके से तमाम मामला को देखती है, ये अब आप इसके लिए आपको एक दो दिन दोबारा इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद सूरत हाल सामने आनी शुरू हो जाएगी। अभी तक जो दो नए लीडर आए हैं उन दोनों का बयान तो पहलों से मिलते जुलते हैं, बज़ाहिर पे ऐसी बड़ी तब्दीली नजर नहीं आती ईरान की पॉलिसी के अंदर। सऊदी अरब वगैरह भी चाहेंगे कि जंग जो है बंद कर दी जाए, और क्या देखते हैं आने वाले दिनों में अरब? सबसे बड़ा प्रेशर तो इन्हीं ममालिक, खलीजी ममालिक का है कि ये जंग फौरी तौर पर बंद की जाए, क्योंकि वो इन जंगों के आदी नहीं, ना वो उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार थे, और ना ही वो इस किस्म की जो माशी झटका लगा है खलीजी ममालिक को, वो उसके लिए तैयार नहीं थे। उनको उठने में बड़ा वक्त लगेगा इन ममालिक को दोबारा। अब तेल की तनसीबात जो है दोबारा कब से शुरू होंगी, रिफाइनरियां कब से काम शुरू करेंगी, उस वक्त तक तेल की कीमत को बर्दाश्त करना जो है वो हर मुल्क के लिए आसान नहीं होगा। बहरहाल एक सख्त दौर जो है उससे खलीजी ममालिक में गुजरना है, और वो सख्त दौर तभी खत्म होगा जब एक दफा जंग रुक जाए। इसलिए खलीजी ममालिक की पहली कोशिश यही है कि जितनी जल्दी हो ये जंग जो है अब रुक जानी चाहिए। हाँ साहब, अगर ईरान की फर्ज करे वो ये शर्त रखता कि अमेरिकन अड्डे यहाँ से खत्म किए जाए, तो अमेरिका तो कभी भी शर्त नहीं मानेगा। लेकिन खलीजी ममालिक को तो होश करनी चाहिए ना फिर। अगर ऐसे कैफियत पैदा हो जाती है और ये शराइत में रख दिया जाता है तो उसका कोई ना कोई अड्डे ना भी खत्म हो, लेकिन उनका कोई ना कोई फ्यूचर के लिए हल निकाला जा सकता है कि भाई उन लोगों अड्डों का इस्तेमाल का इख्तियार किसी और दूसरे के पास हो, या वहां से वो उड़ ना सकते हो, ईरान के ऊपर हमलावर ना हो सकते हो। ये सारी जंग जो बड़ी है ये तो खलीजी ममालिक और जॉर्डन की वजह से बड़ी है। अगर ये लोग शुरू में जरूरत दिखा देते और कह देते कि भाई हमारे अड्डों को आपने इस्तेमाल नहीं करना, हमारी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं करना, ऊपर से मिसाइल नहीं करेंगे, तो फिर जंग की इसमें फैलाव ना बढ़ता जंग का। हाँ सर, एक और भी खबर इस वक्त है जी, इराक से मेरा ख्याल है उनकी जान छूट गई अमेरिकनों से, और वहां से तितर बितर हो गए अमेरिकन। हाँ सर, ये बताइए कि अभी आपने कहा जी ये अड्डे जो है, तो किसके लिए अड्डे बनाने की जरूरत पड़ी? अगर ईरान के ऊपर हमला नहीं करना तो अड्डे वहां पे क्या कर रहे हैं फिर अमेरिकन? देखिए, वो अड्डे बनाने की, मैंने आपको पहले भी रखा था कि असल में तो इन्होंने चाइना तक का जो रास्ता है वो अपने लिए क्लियर करना है कि भाई, तो उसके लिए है जो रास्ते में जो ममालिक आते हैं वहां वो अपनी फौजी अड्डे कायम करना चाहता है, अपनी मख्त को मजबूत बनाने के लिए या कायम रखने के लिए। उससे बाहरी इन ममालिक को चुना हुआ है जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। नहीं तो किसी मुल्क से भी जंग होगी तो ज़ाहिर है वो इन अड्डों से जब हमला होगा तो जवाबी हमला इन्हीं ममालिक पे होगा ना खान साहब। इस रास्ते में एक ईरान ही रुकावट था जिसके लिए इसको इतनी बड़ी तगदाव करनी पड़ी। बाकी ममालिक तो कभी भी शायद उसको इतना तगदाव ना करनी पड़े, वो तो पहले ही रास्ते में बिछे हुए हैं। आखिर में ये बताइए कि जर्मनी के क्या हालात है इस वक्त, और लोग इस जंग के बारे में कोई ऐसी खबर शबर आपके पास हो? देखिए, जर्मनी में कल रात जो है वो आपका ये जो यूरेनियम होता है इसका जो वेस्ट होता है
उसको रात फेंकना था। तो उसके लिए पास तंजीमों ने मुजाहरे भी कर रहे थे। तो वो रात 11 बजे काफिला जो है लेके चले थे यहाँ से मिनिस्टर के पास से 170 किलोमीटर का फासला जो है वो सुबह 4 बजे तक उन्होंने तय किया। पूरा कानवाय था और 4,500 पुलिस वालों ने रात ड्यूटी दी है। पूरी ऑटोबान बंद थी। उस ऑटोबान के साथ साथ कभी अगर कोई मुजाहरा करे या कोई उसके ऊपर फेंके कोई चीज ऐसी जिससे मजीद नुकसान होने का अंदेशा हो, तो वो खैरियत के साथ जो है काफिला जो है वो गुजर गया। सुबह 4:30 बजे वो अपनी जगह पर पहुंच गए। कहीं कहीं पे छोटे छोटे मुजाहरे हुए, लेकिन जो तस्वीरें आई हैं उनमें कहीं भी मुजाहरे 50-60 आदमियों से ज्यादा लोग जो नहीं थे। एक तो ये है, दूसरा ये है कि भाई जो कोलिन का न्यू कोलिन एरिया है कोलिन के अंदर, जिससे वहां पर बहुत ज्यादा 42,000 कहते हैं FIR दर्ज हुई है क्राइम्स के बारे में। वहां पर क्राइम्स बढ़ा चला जा रहा है। वो एरिया जहाँ पर आपने भी देखा होगा कि बहुत ही कम, शायद ही कोई जर्मन रहता है और सारे गैर मुल्की उस एरिया में रहते हैं। वहाँ क्राइम्स की तादाद, कारों की चोरी, कारों से चीजें निकाल के ले जाना, इस किस्म के वाकयात जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहे। वहाँ की पुलिस एक कसरत से तो लग रही है, तो वो वक्तन फवक्तन वहाँ छापे वगैरह मारते हैं। तो वहां भी छापा मारा गया और काफी लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया। सैकड़ों में लोग कह रहे हैं कि पकड़े गए और उन सब मुकदमात वगैरह चलेंगे। बाद इस किस्म की अमनी जो है वो यहाँ पर बढ़ रही है। बाकी जो 2 सूबे यहाँ जिनमें इलेक्शन हुआ है जर्मनी के, उनमें देखिए हालात किस तरह तेजी से बदलते हैं कि CDU और ग्रूने मिलके हुकूमत बना रहे हैं स्टुटगार्ट के अंदर। पिछली हुकूमत भी उन्होंने मिलकर बनाई थी और कहाँ CDU नाम सुनने के लिए तैयार नहीं थी एक जमाने में ग्रूने का। और अब यह है कि उनके साथ मिलकर हुकूमत बना रहे हैं। फिर ये कि जो हमारा राइनलैंड फाल्स का सूबा है माइंस, जहाँ पे दारुल हुकूमत है, वहां पर भी SPD जो है इतवार वाले 10% कम वोट लिए हैं पहले से उन्होंने। और 35 साल के बाद वो सूबा सोशल डेमोक्रेटिक के हाथ से निकल गया और वहां पे CDU की हुकूमत जो है वो बनेगी। वो हुकूमत जो है SPD के साथ मिलकर बना रहे हैं, इसलिए कि तीसरी बड़ी पार्टी जो है वो वहां पे AFD वाले आ गए जो 20% वोट लेने में कामयाब हो गए। तो उस लिहाज से फिर जाहिर बात है कि जो दूसरी पार्टी बनानी है वो AFD तो नहीं मिल सकती। तो साहब तो शायद ना हुकूमत बनाने की तैयार हो CDU अभी तक, तो बहरहाल वो SPD की। लेकिन अब तब्दीली ये होगी कि चीफ मिनिस्टर जो है बहरहाल CDU को आ गया, SPD बैक पे चलेगी। एक बड़ी तब्दीली ये आई है कि भाई म्यूनचन जैसा शहर जो जर्मनी का दूसरा बड़ा अहम शहर है, वहां पर लॉर्ड मेयर जो है वो ग्रीन पार्टी का आ रहा है, वो इलेक्शन जीत गया। तो ये भी जर्मनी में हालात में बड़ी सियासी हालात में बहुत बड़ी तब्दीली है। बहुत शुक्रिया चीफ। अपना खान साहब, एक प्रोग्राम हम करना चाहते हैं जर्मनी में जो गैर मुल्की हैं उनके ऊपर। ये अभी आपने बताया कि क्राइम में इजाफा और जहाँ गैर मुल्की हैं वहाँ पे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और हमारे पास भी कई इतलात मिलती रहती हैं। तो इस पर एक आप प्रोग्राम करेंगे 1-2 दिन में ताकि लोगों को थोड़ा पता चले और एहतियात करें लोग। बहुत शुक्रिया अपना खान साहब, थैंक यू। नाज़रीन, ये आपको मैं बता दूं कि ट्रम्प जैसे बंदे की जिस तरह अभी खान साहब ने कहा जमानत कोई नहीं देगा और 5 दिन के बाद आप देखेंगे कि ये 15 निकात पे अल्लाह करे कोई नताइज निकल आए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कोई अच्छी खबर 5 दिन के बाद आपको मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ।